السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 156 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النمل، آیت 1 سے آیت 59 تک، اور الحمدللہ اس پارے کا اختتام بھی ہے 19 پارے کا۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والا جو شخص ہے دوسرے تمام علوم سیکھنے والے سے افضل ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کا اس عمل کی وجہ سے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہیں۔ تو سورہ النمل کا آغاز ہو رہا ہے، تو سورہ النمل، نمل کہتے ہیں دراصل چیٹی کو، اور سورہ النمل مکی صورت ہے، اور اس صورت میں دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں پرندوں اور چوپایوں کی زبان کا علم عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس میں کثرت سے چیونٹیاں رہتی تھیں۔ چیونٹیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ بل میں داخل ہو جائیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ انہیں مسل کر رکھ دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عربی زبان میں نمل کے معنی چیونٹی کے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام نمل ہے۔ اس کے علاوہ اس سورے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنات جیسی جو مخلوق پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکومت عطا فرمائی، یعنی کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اس میں بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، قیامت اور قرآن مجید کی صداقت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کے واقعات بطور عبرت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز قیامت کی علامت اور قیامت کے قائم ہونے کی کیفیت پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توسین، اور پھر یہ کیا ہے؟ توسین کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یہی خاصیت ہے کہ جب بھی حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کے بعد جسٹ فوراً بات قرآن کریم کے بارے میں یا قرآن کی کتاب کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ آیتیں، یعنی قرآن کی یہ آیتیں، اور یہ کیا ہے؟ واضح ہیں اور روشن ہیں۔ قرآن کریم کی جو یہ آیات ہے یہ واضح ہیں اور روشن ہیں، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو دراصل آیت 1 سے لے کے آیت نمبر 6 تک کی ایمان بالآخرت کی اہمیت پر زور ڈالا گیا ہے۔ تو اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور بالخصوص آخرت کے واقع ہونے پر ان کو پکا یقین رکھے۔ اور اس کے اپوزٹ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا کی عارضی سہولیت مرعوب کر دی گئی ہیں، یعنی کہ دنیا کی چیزیں ان کو پسندیدہ اور لبھاون کر دی گئی ہیں۔ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا، اور سب سے زیادہ خسارے میں یعنی نقصان والے یہ لوگ ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب ہے عمل میں تبدیلی، یعنی کہ جب یہ انسان یقین رکھتا ہے تو بظاہر کیا ہوتا ہے؟ یقین کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں بدلاؤ ہوتا ہے، جو پہلے جیسا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں رہتا، اس کا عمل سنورتا چلا جاتا ہے، اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں،
ईमान नहीं लाते हैं, हमने उन्हें उनके करतूत ज़ीनतदार कर दिखाए हैं, बस वो भटकते फिरते हैं। यानी जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके जो बद आमालों को उन्हीं के लिए मुज़य्यन कर दिया। वही समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत बुरा कर रहे होते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि कोई इंसान काम करे और वो ये समझ रहा है कि हम बहुत अच्छा करें, लेकिन वो आखिरत के लिहाज से अल्लाह की नजरों में आखिरत में वो क्या है? बुरा है, बदतरीन है। आयत देखिए, आयत नंबर 5 है। यही यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता हैं। आयत 6 देखें। बेशक आपको अल्लाह हकीम और अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। आयत 7 देखें। आयत नंबर 7 टू 14 मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ज़ुहूर नबूवत का बयान है। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से लौट रहे थे तो तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत और मुआज़ात से सरफराज फरमाया था। तो यहाँ से आयत 14 तक की इसी चीज का जिक्र है। आयत देखिए, आयत नंबर 7 है। याद होगा जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम सेक यानी कि ताप लो। आयत 8 देखिए। जब वहां पहुंचे तो आवाज आवाज दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है और बाबरकत दिया गया है वो जो उसके आसपास है, और पाक है अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आयत 9 और 10 देखें। मूसा अलैहिस्सलाम, सुन, ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ और गालिब और बाहिकमत। तो अपनी लाठी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसे हिलता जुलता देखा तो इस तरह गोया कि वो एक सांप हुआ, तो मुंह मोड़कर पीठ फेर कर भाग गए और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा, खौफ न खा, मेरे हुजूर में पैगंबर डरा नहीं करते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने खिताब किया कि ए मूसा, डरो नहीं, मेरे सामने मेरे हुजूर जब हाजिर होते हैं तो पैगंबर डरा नहीं करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो असा जो था, क्या था उनका, वो बहुत बड़ा सा सांप बन गया था। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान की फितरत में डर भी रखा है कि अचानक से अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती है तो इंसान डर जाता है। वो डर जो है फितरत में है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया उनको कि डरो नहीं, हमारे हुजूर पैगंबर डरा नहीं करते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 11 है। लेकिन जो लोग जुल्म करे फिर उसकी औज नेकी करे, उस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। आयत 12 देखें। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकता हुआ चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐप के। तो 9 निशानी लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। आयत 13 देखें। बस जब उनके पास आँख खोल देने वाले हमारे मौजे पहुंचे तो कहने लगे ये तो सरी जादू है। यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने क्या कहा? सिहरुम मुबीन, ये तो खुलावा जादू, ये जादूगर है। आयत देखिए, आयत नंबर 14 है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे, सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर। बस देख लीजिए कि इन फितने परदाजियों लोगों का अंजाम कैसा हुआ। आयत 15 देखें। अब यहाँ आयत नंबर 15 टू 44 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े का बयान है। और हमने यकीनन दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपनी बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत फरमाई है। सुभान अल्लाह। तो ये शुक्रगुजार बंदे थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम बाप थे और इन्हीं के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। और उन्होंने कहा कि हमने यकीनन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे रखा था। तो सूरत की शुरुआत में जहाँ पर आयत नंबर 6 आई, वहां पर भी फरमाया गया कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से सिखाया जाता है। और इसकी दलील पर, उसी की दलील के तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तसर से बयान फरमाया। और अब दूसरी दलील हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये किस्सा, अंबिया अलैहिस्सलाम के ये वाकयात, इस बात की दलील है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इल्म से मुराद नबूवत के इल्म के अलावा वो भी इल्म है जिन जैसे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतौर खास नवाजा गया था। मसलन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने ये मुआवजा दिया था ना कि वो अपने हाथ में जैसे ही वो लोहा लेते थे वो क्या हो जाता था? पिघल जाता था, मेल्ट हो जाता था। उन्होंने जंगी जंगी जीरे बनाई, यानी कि जंगी लिबास बनाए।
और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियों का इल्म था, यानी कि परिंदे चरिंद जितने भी हैवानात हैं, इन तमाम जो अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की है ना, जानवर चौपाई हो या परिंदे हो या छोटी से छोटी मखलूक हो जैसे चींटी, इन तमाम जानवरों मखलूक जो हैवानात है उन सब की बोलियों का इल्म दिया गया था। आप देखिए कि चींटी कितनी छोटी होती है ना, और कितनी छोटी, आप देखिए कि उनकी चलने की आहट भी नहीं आती है, तो फिर उनकी बोली तो सवाल ही नहीं उठता ना कि इंसान, एक आम इंसान को समझ में आ जाए। अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को ये इल्म अता फरमाए थे, और भी बहुत कुछ अता किया था, लेकिन यहाँ सिर्फ इल्म का जिक्र किया गया, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि इल्म दरअसल अल्लाह तबारक ताला की तरफ से सबसे बड़ी नियामत है। जिसको इल्म मिल गया उसको खैर कसीर मिल गई। आए देखिए आयत नंबर 16। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ में से दिए गए हैं, बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये सब हम लोगों को फजल दिया, बतौर फजल ना। और दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इससे मुराद ना नबूवत है और बादशाहत की विरासत है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि दाऊद के जो वारिस है सुलेमान हुए, तो विरासत किस चीज की? विरासत दरअसल नबूवत और बादशाहत की विरासत, जिसकी विरासत सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर क्या है, करार पाए। वरना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे, और जो उसकी विरासत से क्या हुए, महरूम रहे। वैसे भी अंबिया किराम की विरासत इल्म में ही नहीं होती, जो माल और असबाब वो छोड़ जाते हैं वो क्या दरअसल सदका है। तो दरअसल जो अंबिया होते हैं उनकी विरासत इल्म में ही होती है, और जो अगर कुछ माल दौलत प्रॉपर्टी जो छोड़ जाते हैं तो वो सदका कर दिया जाता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6727 में, कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाए वो सदका है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और हम सब कुछ है दिए गए हैं। तो यानी जैसे अल्लाह ने उनको अता फरमाया था, उनको इल्म दिया सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम को, फिर नबूवत दी, फिर हुकूमत दी, फिर माल दिया, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात, इंसान और हैवानात तमाम चीजों पर क्या हुकूमत दी, ये तमाम चीजें ये अल्लाह ने फजल दी इन दोनों को। फिर इसमें आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल है। तो इसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इनफरादी खुसूसियात का फजीलत का बयान है। आयत देखिए, आयत नंबर 17 है। सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंदों में जमा किए गए, हर हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। तो दरअसल इससे मालूम होता है कि अब वाकई में कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ा जो था ना उनका गिरोह था, और एक तरफ सारे के सारे परिंदों का गिरोह, फिर एक तरफ जिन्नातों का गिरोह, फिर एक तरफ इंसानों का गिरोह, और फिर और भी जो मखलूकात है, तो सारे मखलूकात के गिरोह थे। तो इनको अल्लाह ने इनफरादी खुसूसियात और फजीलत अता फरमाया, जिसमें वो पूरी तारीख इंसानियत पर मुमताज है। दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी सिर्फ इंसानों पर ही नहीं थी, बल्कि जिन्नात पर थी, हैवानात पर थी और परिंदों पर थी। और यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर भी क्या करते थे, उन्होंने हुकूमत की, हवा भी उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थी। इसमें कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम लश्कर, यानी जिन इंसान परिंदे सबको जमा किया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये एहतमाम, जब ये सब जमा किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, तो जिहाद फी सबीलिल्लाह ही के लिए किए जाते हैं, ताकि सारी दुनिया में अल्लाह ताला के दीन को गालिब किया जा सके, तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी हो सके। आए देखिए आयत नंबर है 18। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेख्याली में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। ठीक है, तो बेध्यानी बेख्याली में सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। आप देखिए कि लश्कर जो था छोटा मोटा तो था नहीं, कितना बड़ा लश्कर था, कितना बड़ा, कि जिसके लश्कर में जिन्नात हो बहुत सारे, फिर हैवानात हो, और फिर चौपाए हो, हाथी घोड़े, है ना। जरा से एक जंगल के ही छोटा मोटा जंगल होता है, अगर उसके सारे जानवर आ जाए तो कितनी बड़ी। और फिर आप देखिए कि ना जाने कितने कितने जो उनके शहर होंगे, उसके वो सारे जानवर, फिर सारे इंसान, फिर सारे जिन्नात। तो बहुत बड़ा लश्कर था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, छोटा मोटा लश्कर नहीं था। ऐसे ही मालूम हुआ कि हैवानात में भी एक खास किस्म का शौर है, क्योंकि चींटियों ने कहा ना, चींटियों से, तो इससे पता चलता है कि
जानवरों में भी, हैवानात में भी एक खास किस्म का शऊर मौजूद है। गोया वो इंसान से बहुत कम और मुख्तलिफ है, लेकिन उनके अंदर भी शऊर है। दूसरा ये कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी अजमत और फजीलत के बावजूद आलिमुल गैब नहीं थे। इसीलिए तो चींटियों को खतरा जब महसूस हुआ तो उन्होंने कहा कि कहीं बेखबरी में हम रौंद ना दिए जाएं। तीसरी बात ये पता चलती है कि हैवानात भी इसी अकीदे सहिया से बहरावर थे, और वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है। तो आप देखिए कि ये जो चींटियां हैं ना, और ये अल्लाह के जितने भी मखलूक़ात हैं, वो सब तस्बीहात करती हैं। तो तमाम मखलूक़ात, चींटियां और जितने भी चरिंद परिंद हैं, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है। तो अल्लाह की तस्बीह कर रही, और उनके अंदर शऊर है एक तरीके का। और बास को इतना भी पता होता है कि इंसान जो नेक काम कर रहे हैं और या बुरे काम कर रहे हैं, इनको ये भी मालूम होता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो यहाँ पर चींटियों की अक्लमंदी की बात की जा रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबिया में से एक नबी को एक चींटी ने काट लिया था, तो उनके हुक्म पर चींटियों के घर जला दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि अंदर चींटियां भी रही होंगी, वो भी जला दी गई। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि अगर तुम्हें एक चींटी ने काट लिया था, तो तुमने अल्लाह की मखलूकात में से एक ऐसी खलकत को जलाकर खाक कर दिया जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही थी। तो इसलिए जो मखलूकात है कि उनका भी हक है जमीन पर जीने का, और इन पैगंबरों को पता भी नहीं होगा कि इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और जब वो मालूम हुआ तो उन्होंने हो सकता है तौबा भी कर ली हो। तो हम अपने घरों में देखें, हमारे यहाँ जब ज्यादा चींटियां होती है, हम लोग क्या करते हैं ना कि कीटनाशक छिड़क देते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं। तो कहीं पर भी अगर चींटियां हैं तो फिर क्या करें, उसको हटा दें, कभी भी उसको मारे नहीं। बस हमें क्या करना है कि हमें चींटियों को मारना नहीं है। अगर हमारे घरों में आ जाती तो हमें उसे हटा देने हैं, किनारे डाल देने हैं। किसी चीज में लग जाती है तो उसको हटा दें, साफ कर दें, लेकिन किसी पत्ते से, पत्ती से, पेपर से, टिश्यू से उसको साफ कर लें, हटा दें, लेकिन चींटियों को मारे नहीं। चींटियां भी अल्लाह की क्या करती है, तस्बीह करती है, और हदीस में भी आता है कि चींटियों को नहीं मारना चाहिए। आयत देखिए, आयत नंबर है 19 है। उसकी इस बात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस दिए और दुआ करने लगी, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नियामतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं कि जिनसे तू खुश खुश हो जाए, और मुझे अपनी रहमत में, अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। कितनी प्यारी दुआ की। इस दुआ को आप लोग हाईलाइट कर लें, पढ़ा करें अपने अस्कार में, सुबह शाम के अस्कार में या दुआओं में इसको पढ़ें। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला से उन्होंने बहुत बेहतरीन दुआ की। आप देखिए कि जो चींटियां जैसी हकीर चीज, हकीर मखलूक की गुफ्तगू सुनकर समझ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम कि, उन्होंने कहा कि वाकई में अल्लाह ने जो मुझे ये मौजज़ा दिया है, मुझे अल्लाह ने जो ये इल्म दिया है, तो ये अल्लाह तबारक ताला की तौफीक से है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्रगुजारी की, और उनके दिल में शुक्रगुजारी का एहसास पैदा हुआ, और कि अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा इनाम किया है। आप देखिए कि बंदा मोमिन वो होता है जो अपनी हर नियामत को देखकर अल्लाह के आगे शुक्रगुजारी करे। अल्लाह ने उनको चीजें दी, उन्होंने शुक्रगुजारी की। अल्लाह ने हमको भी तमाम चीजें दी, लेकिन हमने कभी शुक्रगुजारी की? आप देखिए कि पूरी बॉडी में हमारे जो स्किन होती है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारी हाथ की हथेली की जो स्किन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अल्लाह ने कितनी कीमती स्किन हमारी बनाई है, आप देखिए कितनी मोटी जिल्द होती है इसकी। अगर अल्लाह ताला हमारी हथेलियों की भी स्किन, हमारी बैक साइड वाली स्किन बना देते हथेली की, तो कैसा होता, बहुत जल्दी ये गल जाती, और कोई काम हम कर नहीं पाते, और गर्म चीजें हम पकड़ नहीं पाते, ठंडी चीजें हम उठा नहीं पाते। अल्लाह ने हमारी हथेलियों में ऐसी स्किन लगाई, चढ़ाई है, लेकिन हमने कभी क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया? हमने तो हमेशा अल्लाह की नाशुक्री की। जो चीजें नहीं है और दुआएं नहीं कबूल हुई हैं, बस हमने उसी पे अल्लाह की नाशुक्री की। अल्लाह ने हमें तो वो नियामतें दी हैं, वो तमाम मखलूकात में अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। अल्लाह ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद हम लोगों को कुरान जैसी नियामत अता फरमाई। फिर अल्लाह तबारक ताला ने हम लोगों को मुसलमान घराने में पैदा किया। कितनी नियामतें हैं, अगर आप एक भी नियामत गिनने बैठेंगे तो वाकई में अल्लाह ताला के आगे सर सजदे में झुकने का सारी जिंदगी का मन करता है कि वाकई में अल्लाह के आगे शुक्रगुजारी में सर सजदे में पड़े रहे। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की नियामतों पर शुक्र अदा करते हैं। तो बंदाए मोमिन वो है जो अल्लाह ताला की नियामतों पर शुक्रगुजारी करे, शुक्र करे, और अल्लाह ताला की जो है ना, सर अल्लाह ताला के आगे सर सजदे में कर ले। और आप देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे, क्योंकि नेक लोग होते हैं ना, जब उनको नियामत मिलती है तो उनके मुंह में से ऐसे
आप देखिए कि उनके मुंह से ऐसे शुक्र के अल्फाज निकलते हैं जो नेक लोग होते हैं, तो वो अपनी नियामतों पर जब वो गौर करते हैं, वाकई में अल्लाह ने हमें ये नियामत दी है, तो वो शुक्र अदा करते हैं कि रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नियामतक अल्लती, कि ऐ परवरदिगार तूने मुझे तौफीक दी कि और तेरी उन नियामतों का मैं शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझे इनाम की है, और मेरे माँ बाप पर भी, और मैं ऐसे नेक अमल करती रहूं या करता रहूं जिनसे आप राजी हो जाए। यानी कि अमल करना जरूरी नहीं है, अमल करने के साथ साथ अल्लाह राजी भी हो जाए, ये भी दुआ करना जरूरी है। और मुझे अपनी रहमत से अपने बंदों में, नेक बंदों में शामिल फरमा। तो दरअसल क्या है, शुक्र के अल्फाज जो नियामतों का कदरदान होता है, उसी का दिल और उसकी जबान अल्लाह की तारीफ से लबरेज रहती है। वो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करता है। और यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुस्कुराने और हंसने की बात भी हुई है। तो याद रखिए कि अंबिया का जो हंसना जो होता है, वो ज्यादातर मुस्कुराना ही होता है। जो हंसा है यहाँ पे लफ्ज आया है, वो दरअसल इसकी मीन्स क्या है, वो मुस्कुराए। और आप देखिए कि ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अब इसी से लोग ले ले और आयत ले ले कि अंबिया मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुराते हैं, हंसी और ठहाके और ठट्टा लगाने की महफिल करें। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी जिंदगी में बहुत जोर से कभी नहीं हंसे, बस मुस्कुराए, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है। अंबिया का हंसना दरअसल क्या है, वो मुस्कुराना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलखुलाकर या ठहाके लगाकर या कहकहा लगाकर कभी नहीं हंसे, बल्कि सिर्फ क्या थे, मुस्कुराते थे। अब्दुल्ला बिन हारिस रजी ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो बहुत जोर से हंसे हों, बस वो क्या थे, मुस्कुराते थे। और आयशा रज़ी ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा कि आप का हलक नजर आ जाए, बल्कि आप तबस्सुम फरमाया करते थे। और मुस्कुराना भी दरअसल क्या है, सदका है, जिससे क्या है, इंसान मुस्कुराता है तो ये क्या, सदका है। लोगों, आप देखिए अगर आप सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो फिर क्या, जो जो कमरे में मौजूद है, जो आसपास मौजूद है, तो वो भी क्या, उनका दिल भी खुश रहता है। अभी एक इंसान गुस्से में है, मुंह बनाए हैं, टेढ़ा मेढ़ा किए, तो आसपास जो लोग बैठे वो खौफजदा हो जाते हैं। तो मुस्कुराने से भी क्या होता है, ये भी सदका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर बहुत सारी इंसान ठहाके की मजलिस लगाए या बहुत जोर जोर से हंसे, तो बहुत जोर जोर ठहाके लगाना और मजाके करना, ये सब क्या है, ये पसंदीदा चीज नहीं है। आयत देखें, आयत नंबर है 20। आपने परिंदों की देखभाल की, फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैंने हुदहुद को नहीं देखा, क्या वाकई वो गैर हाजिर है। तो अब जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके लश्कर में उन्होंने हुदहुद को नहीं पाया। तो जो ये हुदहुद था, दरअसल इसका काम ये होता था कि कहीं पर भी जो जमीन में पानी होता था, तो पानी के बारे में ये तहकीक कर लेता था। अल्लाह ने उसको ऐसी वो कुव्वत दी हुई है हुदहुद को। और जब ये हुदहुद पानी तहकीक कर लेता था कि यहाँ पे पानी है, तो फिर जिन्नात जो थे उस पानी को जो जो कुओं को वगैरह को खोद देते थे। तो इसलिए ये भी लश्कर में शामिल था। और आप देखिए कि छोटा मोटा तो लश्कर था नहीं, बहुत बड़ा लश्कर, तो पानी की तादाद भी ज्यादा ही चाहिए होती थी, इसलिए ये लोग क्या करते थे, पानी का इंतजाम खुद करते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे जो है लश्कर में हुदूद गायब है, तो उन्होंने फरमाया कि क्या बात है, मैंने अपने लश्कर में हुदूद को नहीं पाया, वो गैर हाजिर है। आए देखिए आयत नंबर 21। यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा और इसे जिबा कर डालूंगा, यह मेरे सामने कोई सही दलील बयान करे। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो हुदूद है मेरे लश्कर में ये नहीं है और गायब है, और अगर इसने मुझे सही सही बातचीत नहीं बताई कि क्या बात है, किस वजह से ये गायब था, तो मैं जरूर जरूर इसको जो है अपने लश्कर से हटा दूंगा और इसमें से जिबा कर डालूंगा। तो इससे बात पता चलती है कि अगर जो चौपाए वगैरह हैं, अगर गलती करे तो उनको हल्की फुल्की जो है ना सजा वगैरह दे सकते हैं या डांट सकते हैं। इससे ये पता चलता है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी जानवर को बेतहाशा जुल्म कर रहे मारे, ऐसा नहीं कर सकते। आयत देखिए, आयत नंबर है 22। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। सबा एक शख्स के नाम पर एक कौम का नाम था, और भी ये एक शहर का भी नाम था। यहाँ दरअसल शहर मुराद है, जो दरअसल यमन से 3 दिन के फासले पर था। तो ये जो हुदहुद था, ये वहां की खबर लेकर आया, क्योंकि परिंदा था, जहां जी चाहता था उड़ता था। तो उड़ते उड़ते ऐसी कौम के पास गया जहां पर ये लोग क्या करते थे, सूरज की परस्तिश करते थे।
आयत देखिए, आयत नंबर 23। मैंने देखा है कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तखत भी बहुत बड़ा अजमत वाला, यानी बहुत बड़ा है। तो उसने देखा कि यहाँ पर जो एक औरत है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर जो हुकूमत कर रही है। तो यानी हुदहुद के लिए ये जो काम था ये बाइस ताज्जुब का था, क्योंकि सभा में एक औरत हुक्मरान थी। कौम सभा में जो एक औरत क्या थी, वो हुक्मरान थी। लेकिन आजकल का ये भी कहा जाता है कि औरतें हर मामले में मर्दों के बराबर हैं। अगर मर्द हुक्मरान है तो हो सकता है, तो फिर औरत क्यों नहीं, इसी तरीके से आज एतराजात करते हैं ना। हालांकि ये नजरिया इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। बाज लोग मलिका सबा के इस जिक्र से इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि औरत की सरबरी यानी कि सराबरी हुकूमत ये क्या है, जायज है। हालांकि कुरान ने एक वाक़े के तौर पर यहाँ पर जिक्र किया है, और इसलिए नहीं जिक्र किया कि औरतें भी क्या करें, हुक्मरान बन जाए, हुकूमत करने लगे, या जो है ये इस तरीके से राजपाट संभालें। और आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी पता चलता है कि एक मर्तबा का वाकया है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि अहले फारस ने किसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौम कभी फला नहीं पाएगी जिन्होंने अपना मामले का वली एक औरत को बनाया हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, और हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जी से नहीं कहते थे। जो हदीस भी थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल होती थी, इसे वही खफी कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई लफ्ज अपनी मर्जी से नहीं कहा, सब कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल होता था। तो ये बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 4425 है। तो इससे पता चलता है कि जहां पर जो है ना औरतें हुक्मरान होंगी, तो वहां पर क्या है कि उनके जो मामले हैं बेहतर नहीं होंगे, खसारा होता है। और लेकिन आज का जो कल्चर बन गया है, फैशन बन गया है कि औरतें अपने आप को समझती नहीं, हम क्या है कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ठीक है, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बिजनेस करती हैं जो आप घर बैठे कर रही हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं, साथ साथ आप जो है घर के जो काम काज करने के साथ भी अपने आप क्या बिजनेस कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखिए कि एक औरत अगर घर छोड़कर निकलती है तो उसके पीछे कितनी परेशानियां आती हैं, फिर खुद उसकी जो जिंदगी है वो चक्की बन जाती है, ना अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे पाती है, ना घर में अपने शौहर को वक्त दे पाती है। शौहर और रिश्ते की वो बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, मिठास खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक चक्की बन जाती है। फिर तीसरा, वो तो घर पे ध्यान ही नहीं रखती है कि घर पे कुछ भी हो पीठ पीछे उसके, तो अल्लाहू अलम। तो इसीलिए तो फिर आप देखिए कि कितनी बच्चियां ऐसी होती जिनकी जो उनके साथ रेप भी हो जाता है, उनके घर के नौकर चाकर ही उनकी इज्जतों पे हमला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माएँ तो ऑफिसों में बैठी हैं, बिजनेस कर रही है ना, तो बच्चियां हैं, उनकी हिफाजत करने की जरूरत है। इसीलिए माओ का घर में रहना जरूरी, इसीलिए शरीयत ने, कुरान ने इस चीज को पसंद नहीं किया है। हाँ, अगर सब कुछ मैनेजमेंट के साथ आप अपने बच्चे को भी अच्छी तरबियत कर चुके अपने, या घर में रह करके, या इस तरीके से आप साथ में रखते हैं, या उस तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि अपने बच्चों को भी वक्त देते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ऐसा कुछ ऐसा प्रोफेशनल करते हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए बिजनेस करना कोई बुरी चीज नहीं है। खदीजा रजी ताला अन्हु भी क्या थी, खदीजा रजी ताला अनहा भी जो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी जो है मक्के की, और उन्होंने अपना माल और जान सब कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रजी ताला अनहा से बहुत मोहब्बत करते थे। तो लेकिन अगर कोई इस आयत को इससे इस्तदलाल करे कि नहीं, हम बादशाहत कर सकते हैं, हम हुकूमत कर सकते हैं, हम पीएम सीएम बन सकते हैं, और इससे ये सवाब है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जो अल्लाह ताला अल्फाज लाए हैं, तो एक वाक़ये का बस क्या है, बयान है, बस इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। तो उन्होंने, तो जैसे कि आप देखिए कि इसमें ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उसने कहा कि सबा की एक सच्ची खबर लाया हूँ तेरे पास, मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत कर रही है, फिर जिसे हर किस्म की चीजों से कुछ ना कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी क्या है, बड़ी ही अजमत वाला है। तो इससे पता चलता है कि जो सबा जो मलिका थी, उसकी जो जो महारानी थी, तो उसका जो तख्त था वो भी मामूली नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब कि बेहतरीन था। कहा जाता है कि उसके जो तख्त था जिसपे मतलब बैठते हैं ना जो बादशाह लोग, बड़ी सी चेयर, बड़ी सी कुर्सी जिसे कहते हैं, जिसे सिंहासन बोलते हैं, तो उसका जो तख्त था, तो उसकी जो लंबाई थी वो 80 हाथ थी, और जो चौड़ाई थी वो भी क्या थी, 40 हाथ थी। ठीक है, तो एक हाथ कितना मीटर होता है, जो कपड़े वाला जो मीटर होता है, 1 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर, और उसकी ऊंचाई 30 मीटर, 30 हाथ थी। और इसमें मोती, सुर्ख याकूत
और न जाने कौन कौन से हीरे मोती जवाहरात सब कुछ जड़े हुए थे, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरीके से इनका ये सिंहासन था। सिंहासन जो था खास था, और तभी इस वाकये में बार बार इस जो इनका जो तख्त है उसका जिक्र हुआ है। आयत देखिए, आयत नंबर 24। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाए रखे हैं, दिखलाकर सही राह से रोक दिया है, और बस वो हिदायत पर नहीं आते हैं। तो दरअसल ये जो हुदहुद था, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम को। वो कह रहा है कि मैंने देखा कि मैंने ऐसी कौम को देखा है कि जो अल्लाह ताला को छोड़कर किसकी इबादत कर रहे हैं? गैरुल्लाह की, और वो सूरज की इबादत कर रहे हैं। और दरअसल अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना दरअसल वो क्या है? शैतान की पैरवी करना है। तो शैतान ने उनके इस कामों को क्या करके दिखाया है? अच्छा करके दिखाया, और सही राह से रोक रखा है। तो जिस तरह परिंदों को ये शऊर है कि गैब का इल्म अंबिया को नहीं है, जैसा कि हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि मैंने एक ऐसी अहम खबर लाया हूं जिससे आप क्या थे, आप नहीं मालूम, आपको आप बेखबर हैं। इसी तरह वो अल्लाह ताला की वहदानियत का एहसास और शऊर भी रखते हैं। यानी परिंदे और मखलूकात अल्लाह की जानती है कि क्या है, वहदहू ला शरीक है। इसीलिए यहाँ हुदहुद ने हैरत के अंदाज से और ताज्जुब के अंदाज में कहा कि ये मलिका और इसकी जो कौम है अल्लाह की बजाय सूरज के पुजारी हैं, और शैतान उसके पीछे लगा हुआ है, और वो शैतान के पीछे लगी। शैतान ने उनके कामों को अच्छा करके दिखाया हुआ है और अच्छे रास्ते से रोक दिया है। आए देखे आयत नंबर 26 से, कि इसी अल्लाह के लिए सजदा करो जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छिपाते हो और जो जाहिर करते हो वो सब कुछ वो जानता है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही माबूद बरहक है, वही अजमत वाला अर्श का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ कहा है, या तू झूठा है। मेरा इस खत को ले जाकर उन्हें दे दो, फिर उनके पास से हट आओ और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। आयत 29 देखे। वो कहने लगे कि ऐ सरदार, मेरे तरफ एक बावक्त खत डाला गया है। दरअसल हुदहुद ने चूंकि तौहीद का वाज और शिर्क का रद्द किया और अल्लाह ताला की अजमत और शान को बयान किया, इसलिए हदीस में आता है कि 4 जानवर को कत्ल मत करना: चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सर्द यानी लटूरा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 33 और 2 इसका नंबर है, 332 इसका नंबर है। ठीक है, तो हदीस से पता चलता है कि 4 जानवर को मारने से मना किया गया: चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा। लटूरा भी कोई एक परिंदा जैसा होता है, उसको कहते हैं। तो अक्सर हमारा सामना किससे होता है? शहद की मक्खी भी बहुत कम आती है, सामना अक्सर चींटी से होता है। आप देखिए कि अल्लाह ने पूरी एक कुरान में सूरत नाजिल फरमा दी है, तो चींटियों को मारने से परहेज करें। आ जाए तो उनको आटा डाल दें, ये जैसे पुराने जमाने में था ना, चींटी आती थी घरों में, बिलों में या कहीं से, तो फिर उनको फौरन आटा डाल दिया जाता है, तो वो फौरन उसको लेके चली जाती है अपने अपने बिलों में। तो यहाँ पर दरअसल आयत नंबर 29 से जो मलिका सबा है उसकी मशवरात के बारे में जिक्र किया गया है। आयत नंबर 29 टू 33, कि मलिका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मिला तो उसने फौरन ही अपनी रियासत के तमाम जो लोग हैं उनको जमा किया। उन्होंने उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़कर सुनाया। इस खत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौम सबा को जो पैगाम भेजा था, कहा था कि मेरी इताअत कबूल करो, कि मैं मेरे दरबार में हाजिर हो जा। तो मलका ने जो आए हुए जो लोग थे उनसे कहा कि मैं बगैर मशवरात के लिए कोई भी फैसला नहीं करती। अब बताओ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम का जवाब हम किस तरह दें? तो जो सरदार थे, जो मतलब कि वो आम लोग नहीं थे, खास लोग थे, तो जो आमदीन थे यानी सल्तनत में, उन्होंने कहा कि जो मेन लोग थे वहां के लोगों की, जो उनकी सल्तनत थी, उसने कहा कि हमें पूरी ताकत से उनका मुकाबला करना चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं, अलबत्ता फैसले का इख्तियार आपको है, आप जो चाहे फैसला करें। आयत देखिए, आयत नंबर 30, जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शने वाले और जो बख्शिश करने वाले और मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो था, जो अपने खत में क्या लिखा हुआ था, इन्नहु मिन सुलेमानी इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह इस सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खत लिखा था तो उसमें आगाज में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, और क्या लिखा था, ये कि मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ।
तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बादशाहों को जो खतूत लिखे थे जिनमें उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी जो मलिका सबा है उसको इस्लाम कबूल करने की दावत बजरिए खत भेजी। आयत देखिए, आयत नंबर 32। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे उस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकतवर और कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच समझ लीजिए और हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करने करेंगे। यानी कि ये मलिका सबा कह रही हैं। और आप देखिए कि जो पहले जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, तो लड़ाइयों की वजह से क्या होता था कि जो बादशाह जब भी किसी बस्ती में जाते थे तो वहां पूरी बस्ती को वो उजाड़ देते थे और बाइज्जत लोगों को जलील कर देते थे ना, कैदी बन जाता है, कैदी बना लिया जाता है। और फिर और उन्होंने उसने ये कहा कि ये लोग ऐसा ही करते हैं दरअसल, लेकिन सुलेमान अलैहि सलाम बादशाह ही नहीं थे, अंबिया थे। तो वो दरअसल ऐसा करने वाले नहीं थे। हमारी शरीयत ने यानी अल्लाह ने हम लोगों को ऐसा कुछ करने को मना किया है। तो जंगे भी की कुछ बहुत सारे उसूल होते हैं, कई उसूल हैं, तो बहुत सारी चीजों से अल्लाह ने मना किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला का कलमा तो नाफिज होता है। तो इस तरीके से वो डरी और उसने अपने जो सरदार है उनसे मशवरा किया। आयत देखिए, आयत नंबर 35। मैंने उन्हें एक हदिया भेजने वाली मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली, यानी कि हदिया यानी कि गिफ्ट वगैरह। फिर देख लो कि फिर देख लूंगी कि वो कासिद क्या जवाब लेकर लौटता है। आयत 35 36 देखें। बस जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया कि तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो, मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, बस तुम अपने इस तोहफे से खुश रहो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरअसल ये जो तोहफे तोहफ भेजे गए थे उनको पसंद नहीं आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर बहुत गुस्से हुए कि उन्हें कीमती तोहफे देकर दुनियादार की तरफ राग़िब किया गया है। उन्होंने मलिका के भेजे हुए जो तोहफे थे, गिफ्ट थे, वापस लौटा दिए और मलिका के जो कासिद से कहा कि हम अनकरीब ऐसे लश्करों से तुम्हारी रियासत पर हमलावर होंगे जिनका मुकाबला करना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर वाकई में सुलेमान अलैहिस्सलाम हमला कर देते तो किसी तरह से भी वो जीतने वाले नहीं थे। आप देखिए कि हमला किस लिए हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था? नहीं, वो लोग क्या करते थे, सूरज की परस्तिश करते थे। पहले तो उनको जो है तौहीद की बात भेजी गई कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के नाम से खत शुरू किया गया, उसमें फिर आगे लिखा था कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और तौहीद पर डट जाओ, जम जाओ। और पहले उनको इस्लाह का पैगाम भेजा गया। जब वो नहीं माने तो फिर उसके बदले में क्या किया मलिका साहबा ने, अ, गिफ्ट भेजे, तोहफे तहाइफ भेजे। तो एक अंबिया होते हैं, जो रसूल होते हैं, वो दुनियावी चीजों के वो उनको हरीस नहीं होते, उनको आखिरत उनका टास्क होता है, उनको आखिरत उनका गोल होता है। उनको दुनियावी नहीं कुछ भी चाहिए होता है। जब उनके सामने दुनियावी तोहफे तहाइफ भेजे गए तो वाकई में उनको गुस्सा आना लाजमी था। तो इस तरह से फिर उन्होंने गुस्से में वो आ गए। आयत देखिए, आयत नंबर 37 है। जा उनकी तरफ वापस लौट जा, हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत ताकत ही नहीं, और हम उन्हें जलील और पस्त करके वहां से निकाल बाहर कर देंगे। देखिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये क्या है, बादशाह ही नहीं बल्कि क्या थे, पैगंबर थे, इसलिए उनकी तरफ से लोगों को जलील ख्वार किया जाना नामुमकिन था। लेकिन जंग और जिदाल का नतीजा ही यही होता है, क्योंकि जंग नाम ही क्या है, जो खून रेजी, शिकस्त वगैरह वगैरह, इस और जिल्लत ख्वारी, यही मुराद है। वरना अल्लाह ताला के जो पैगंबर लोगों को खामखा जलील और ख्वार नहीं करते हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल और उसवा हसना जंगों के मौके पर रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर 38। आपने फरमाया, ए सरदार, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। आयत नंबर 38 से आयत नंबर 41 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात का जिक्र है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो साथी हैं उनसे कहा कि मैं तुमसे कौम मलिका की सबसे कीमती जो तख्त है उसके बारे में मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम में से कौन है जो उसको अ, उसके आने से पहले यहाँ पर उठाकर ले आए। तो इफरीत नामी जिन, उसने कहा कि मैं आपके दरबार पर उसको लेकर
फौरन आ जाऊंगा, यानी कि दरबार दरख्वास्त होने से पहले पहले ये खिदमत सर अंजाम दे दूंगा। तो एक और जो साहब थे उन्होंने कहा, जिसे अल्लाह ने कोई खास इल्म दे रखा था, तो उसने अर्ज किया कि ये काम दरअसल क्या है, पलक झपकते में मैं कर सकता हूँ, और उसने ऐसा कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र अदा किया, और अब उन्होंने मलिका जो सबा थी उनकी जहानत का इम्तिहान लेने के लिए हुक्म दिया कि मलिका के तख्त में कुछ तब्दीलियां कर दो, ताकि हम देखें कि मलिका अपना तख्त पहचानती है या नहीं। आयत की आयत नंबर 39 है। कौल इफरीतुन, एक कवि हैकल जिन ने कहा। तो इफरीत जिन्नों का सबसे ज्यादा ताकतवर जिन, जिसका नाम इफरीत है, उसको यहाँ जिक्र किया गया है। तो एक कवि हैकल जिन ने कहा कि आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले ही पहल मैं इसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ, और हूँ भी मैं अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए हुए, मतलब आप पलक झपकाए इससे पहले पहले मैं आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे कि यही मेरी रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजारी अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार गनी है और करीम है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये मुजाहिरा करना चाहते थे कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जो नियामतें हैं वो अता की हैं, ताकि अल्लाह की ज़मीन पर तौहीद नाफिज हो सके। तो इनमें से इनके जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मजमा लगता था ना, पूरा सा जो उनकी मजलिस लगती थी, उन्हीं की मजलिस में एक कवि हैकल जिन इफरीत जो था, उसने कहा मैं इस काम को, मतलब कि मजमा दरखास्त होने से पहले ही मैं कर दूंगा, यानी कि कुछ घंटों का उसने वक्त लिया। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद की बजाय एक शख्स यानी कि एक इंसान से मदद ली। तो ये शख्स कौन था जिसने कहा कि ये किताब कौन सी थी, और आप देखें ये इल्म क्या था जिस जिसके दरअसल जोर पर ये दावा किया उसने। तो ये दरअसल क्या है, ये गैब की खबरें हैं। इसमें मुफस्सिरों ने बहुत मुख्तलिफ अकवाल दिए हैं, तो इसके बारे में कोई ठोस बात नहीं मिलती है। तो ये शख्स कौन था, ये किताब कौन सी थी, और ये क्या इल्म था, इसके बारे में क्या है, इन तीनों की पूरी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाहु आलम। यहाँ कुरान करीम के अल्फाज से जो बात मालूम होती है वो इतना ही है कि कोई इंसान ही था जिसके पास किताब का इल्म था, किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर इसे ये कुदरत दे रखी थी, और पलक झपकने में ही वो तख्त ले आया। और बहुत से मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं ये खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी ना, अल्लाह ताला मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद किसी की भी हुकूमत ना हो। तो अल्लाह ने उनको वो हुकूमत दी, अल्लाह ने उनको हवाओं पे मुसख्खर कर दिया, पलक झपकते हुए। और टाइम जिसे आज हजारों साल के बाद जो आज टाइम मशीन बना रहे हैं कि फ्यूचर में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो हो सकता है अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को टाइम के ऊपर भी क्या था, मुसख्खर किया था। तभी तो आप देखें कि पलक झपकते हुए, और तकरीबन जो है कितने दिन का सफर था इनका, काफी लंबा सफर था, कम से कम हफ्ते भर का जो सफर था इनका, जहाँ पे मुल्क था वहां, जहाँ से मलका सबा का मुल्क था, हफ्ते भर के सफर के में जो तय किया, 7 दिन जाने के 7 दिन आने के। तो इस तरीके से उन्होंने पलक झपकते ही वो क्या था, तख्त लेकर हाजिर हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, शुक्रगुजारी की। अल्लाह के बहुत बड़े शुक्रगुजार बंदे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। और फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि शुक्रगुजारी दरअसल क्या है, इंसान अपने ही नफा के लिए करता है, और शुक्रगुजारी करने से क्या होता है, उसका अपना ही फायदा होता है। और जो शुक्रगुजारी नहीं करता तो अल्लाह ताला क्या है, इन सब तमाम चीजों से क्या है, बेनियाज है। अल्लाह ताला तो गनी है, तुम शुक्र अदा करोगे तुम्हारा फायदा है, नहीं ना शुक्री करोगे तुम्हारा ही क्या है, नुकसान होने वाला है। अल्लाह तो तमाम चीजों से क्या है, बेनियाज है, गनी है। आयत की आयत नंबर 41 है। हुक्म दिया गया कि इसके तख्त में कुछ हेर फेर कर दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से हुई होती है जो राह नहीं पा लेती है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया, दरियाफ्त किया कि ऐसा ही तेरा भी तो तख्त है, यानी सवाल किया गया। तो मलिका सबा ने जवाब दिया, उसने जवाब दिया कि ये तो गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था कि वो, और हम मुसलमान थे। यानी मलिका सबा जो थी, फौरन उसने देख के अपना तख्त पहचान लिया, और कहा कि वाकई में ये जो तख्त है ये मेरा ही तख्त तख्त है। तो मलिका जो सबा थी जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, तो अपना तख्त फौरन पहचान लिया उसने, और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और पारसाई का एतराफ करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। इससे क्या पता चलता है, अब जब ये मुलाकात करने आई
अब ये इस्लाम लाई, मुसलमान हुई। उससे पहले क्या थी, वो इस्लाम नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं आई हुई थी, लेकिन क्या था उसके दिल में ये था कि चलो देख के मिला जाए, देखा जाए कौन सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और जब सामने रूबरू हुई तो अल्लाह के रसूल थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने मौजज़ात दिए थे। और तमाम मौजज़ात को देखकर वो पहचान गई कि वाक़ई में ये कोई मामूली इंसान शख्स नहीं है, ये अल्लाह के खालिस बंदे हैं, और वो फिर क्या है, मुसलमान हो गई। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई तो शीशे के फर्श के ज़ाहिरी धोखे से वो धोखा खा गई। ठीक है? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल था वो पूरा शीशे पर मुश्तमिल था, यानी कि पूरा का पूरा महल शीशे वाला बना था। और आप देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे ना, कि दाऊद अलैहिस्सलाम, की वो हाथ से लोहा पिघल जाता था उनके, तो अल्लाह ने ये भी उन लोगों को ये भी जो है ना मौजज़ात दिए हों कि शीशा मेल्ट हो जाता हो, शीशे की मोटी-मोटी चादरें, शीशे की मोटे-मोटे दीवारें, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है उनके यहाँ। तो जो शीश महल था उसका जो फर्श भी था, क्या था, वो भी शीशे का था, और इस तरीके का था कि जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे घरों में देखा होगा कि नीचे फर्श पे फ्लोरिंग जो होती है वो शीशे की होती है, और नीचे फिर उसके नीचे भी क्या होता है, झरना ऐसा बह रहा होता है, या बहुत जगह पे एक्वेरियम होता है या फिश पॉन्ड होता है, तो इस तरीके से उसके ऊपर शीशे की मोटी जो है चादर बिछी होती है। अक्सर इंसान धोखा खा जाता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुला है या हम इसमें गिर जाएं। तो इस तरीके से आप देखिए कि हजारों साल पहले अल्लाह ने अपने अंबिया को, रसूल को ये मौजज़ात अता फरमाए कि उन्होंने शीशे का ऐसा फर्श बनाया कि वो जो है मलिकाए जो बिल्कीस थी वो भी धोखा खा गई। उसने पानी समझकर अपना जो पाचा था या दामन था समेटने की कोशिश की ताकि लिबास कहीं गीला ना हो जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये पानी नहीं बल्कि क्या है, शीशे की कारीगरी है। अब वो जान गई कि ये जो चीज़ों का ज़ाहिर कुछ जो कुछ भी होता है, हकीकत वो कुछ और ही है। यानी कि जो मलिका सबा थी, वो लोग क्या करते थे ना, मलिका सबा और सबा के जो लोग थे, तो वो लोग सूरज की इबादत करते थे ना, सूरज की परस्तिश करते थे, लेकिन वो अपने हकीकी माबूद को नहीं इबादत करते थे। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुलाकात हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबलीग की बात पहुंचाई, अल्लाह के पैगाम पहुंचाया, तो फिर वो जान गई कि तमाम जितनी ज़ाहिरी चीज़ें होती हैं, उनका ज़ाहिरी चीज़ कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होती है। यानी कि वो अपने हकीकी माबूद को पहचान गई, जो चमकने वाला जो सूरज है वो उनका माबूद नहीं, वो उस चीज़ को वो लोग पहचान गए थे। तो लोग दरअसल ज़ाहिरी चमक से मुतासिर होकर नताइज अख़ज़ कर लेते हैं और हकीकत को नहीं पहुँच पाते हैं। तो कभी भी ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर होकर के जो नताइज हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्या, हकीकत की तरफ इंसान को जाना चाहिए। तो जो लोग सूरज की चमक से मुतासिर होकर उसे माबूद समझ बैठते हैं, हालाँकि असल माबूद तो अल्लाह ही ताला है, जिसने सूरज को और उसकी तासीर को पैदा फरमा दिया है। आयत देखिए, आयत नंबर है 43। अब यहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह सारी आयतें समझ में वाज़ेह आ जाएँगी, क्योंकि सारा आप लोगों को बता दिया इसका। आयत देखिए, आयत नंबर 43। इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही। यकीनन वो काफिरों में से थी। उससे कहा गया कि महल में चलो, जिसे देखकर ये समझकर ये हौस में उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। फरमाया ये तो शीशे में मंडी हुई इमारत है। यहाँ पे यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया जो लफ्ज आ रहा है ना, तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शीशे में मंडी हुई इमारत है। कहने लगी, और मलिका सबा कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, यानी कि मैंने शिर्क किया, ए अल्लाह मैंने जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फर्माबरदार बनती हूँ। यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस दावत की तरफ कह रहे हैं, मैं उस पर लब्बैक कहती हूँ। आयत 45 देखिए, यकीनन हमने समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, तो तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने वाले हो गए। तो यहाँ आयत नंबर 45 टू 53 कौम समूद का जिक्र है। कई बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो उनकी बदबख्तियों का जिक्र है। और इस तरीके से हम लोग ने जो आज ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है यहीं पे कंप्लीट हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकये से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आप देखिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वाकया है, इसमें ये बारीक पॉइंट मिलता है कि अल्लाह की नियामतों का क्या होना चाहिए, इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। और हर काम के आगाज में बिस्मिल्लाह करना चाहिए। कोई भी तहरीर इंसान लिखवा रहा है, कोई भी कहीं किसी को लेटर भेज रहा है, कोई भी तहरीर भेज रहा है, तो उसमें सबसे पहले बिस्मिल्लाह होना चाहिए। हाँ, बिस्मिल्लाह का अदब और इकराम भी करना चाहिए कि हाँ, जैसे खास करके शादियों के कार्ड पे लिखवाते हैं बिस्मिल्लाह ना, तो बिस्मिल्लाह अगर कहीं आ गया है इस तरह से कार्ड, तो क्या करें, आपका क्या जिम्मेदारी है, बिस्मिल्लाह वाला जो लफ्ज है उसे कार्ड से हटा के किसी मिट्टी में, गमले में उसको दफना दें। कार्ड को, कार्ड का वो हिस्सा, वो पार्ट क्या करें, जमीन में गाड़ दें। उसकी बेदबी होने की इधर उधर छोड़ ना दें, क्योंकि ये आयत क्या है, कुरान की आयत है।
پھر آپ دیکھیے اس میں خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے انہوں نے کہا کہ شکر گزاری کی، کہ ہر بندہ مومن کیا ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، وہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کی رضامندی مجھے مل جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تو کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اسے قبول ہونے کے لیے بھی کیا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے اعمال ہو جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ تو اعمال ایسے ہوں اللہ جس سے آپ راضی ہو جائے، تو انہوں نے یہ بھی دعا کی۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ماں باپ پر اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں، اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ جن سے اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائے، اور پھر آخری میں انہوں نے یہ کہا تھا برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ لفظ لائے تھے، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے، تو اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت مومنوں کا ہی گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت ہمتی تھے، بہت زیادہ ہمت والے سوال کر لیتے تھے، اور انہوں نے ایسے سوالات پوچھ کر کے واقعی میں ہم لوگوں کے لیے بہت کام آسان کر دیا۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ سے اپنے دامن میں ڈھانپ نہیں لئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کی 2427 ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکے گا، چاہے اس نے کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، کتنے ہی اچھے اچھے کام کیے ہوں۔ اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو چیٹی وغیرہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، خاص کر کے جو چیٹی ہے اس کو مارنا منع کیا ہے۔ حدیث سے بھی پتہ چلا کہ چیٹی کو ہم نہیں مار سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی، بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، چلیں آپ لوگ نوٹ کر کے بتائیے گا اور کیا آپ نے سیکھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 46۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگنی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بدشگنی اللہ کیا ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو، پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے، اور اس کے وارث سے اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل ہی سچے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 50 ہے۔ انہوں نے مکر یعنی خفیہ پلاننگ کی، اور ہم نے بھی، اور وہ سب اسے سمجھتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 51۔ آپ دیکھ لو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا، کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 52۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو غرق کیے گئے، ختم کیے گئے، مٹی میں ملا دیے گئے، بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ختم کیے گئے تو ان کے ظلم کی وجہ سے یہ اجڑے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو کیا نشانی ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، پورے کے پورے گھر بستیاں تباہ برباد کر دی گئی نا، اللہ نے برباد کر دی۔ تورات میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، ظلم نہ کرو، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبانی ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ان کے گھر کبھی نہیں بستے ہیں یا خوشیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو عورت بد زبانی کرتی ہے، وہ بد زبان ہوتی ہے، سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے، تو اس کا بھی کیا ہے، نباہ نہیں ہو پاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کے یعنی کہ جو بادل ہوتے ہیں، جو
आपने देखी होंगी बादल आसमान में जो होते हैं तो किस तरह आपस में जुड़ करके बारिश बरसाते हैं, जो रहमत और बरकत लेकर आती है। तो नरमी की वजह से ना, कि बादल इतने सॉफ्ट, इतने नरम होते हैं कि आपस में सब जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या करते हैं, मेह बरसाते हैं, बारिश बरसाते हैं, तो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो नरमी जो होती है क्या होती है, खैर अच्छाइयाँ लेकर आती है, और आपस में इंसान एक दूसरे में शीर और शक्कर यानी घुल मिल करके रहता है। वहाँ हम एक दूसरे से मशवरा करते हैं, एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, और इस तरह घर आबाद होते हैं, नस्लें आबाद होती हैं। तो इसलिए हम में से हर एक को देखना चाहिए कि किसी भी दर्जे पर अगर सख्ती है तो हमारे मिजाजों में, तो उसके अंदर नरमी लाएं। इल्ला ये कि बच्चों को कभी कभार क्या है, थोड़ा बहुत तो डांट वाट होनी चाहिए, वरना क्या बच्चे भी बर्बाद होते हैं। वरना ये हर वक्त उठते बैठते क्या है, इंसान बददुआएं कर रहा है, थप्पड़ लगा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब बुरी आदतें हैं। ये तर्ज अमल क्या खुद इंसान को हलाकत में डालने वाला है। और फिर क्या है, ये तो फिर जुल्म कैटेगरी में आ जाएगा। और क्या है, अल्लाह ने फरमाया जुल्म हराम है। कयामत के दिन भी जो नुकसान का बायस होगा वो जुल्म होगा। जुल्म के नतीजे में नेकियां भी सारी क्या है, काम नहीं आने वाली। आयत देखिए, आयत नंबर 53 है। हमने उनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। और लूत का जिक्र कर, जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या वो बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हैं। यहाँ से अब लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र है। आयत देखिए, आयत नंबर 55। ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शोहबत के लिए आते हो। हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। कौम का जवाब बाजुज उसके कहने के और कुछ ना था, आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो, तो ये तो बड़ी पाकबाज बन रहे हैं। बस हमने उसे और उसके अहल को बाजुज उसकी बीवी के सबको बचा लिया। उसका अंदाजा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे। यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के। आयत देखिए, आयत नंबर 58 और 59 है। और उन पर एक खास किस्म की बारिश बरसा, यानी पत्थरों की बारिश। बस उनको धमकाए हुए लोगों पर बुरी तरह बारिश बरसी हुई। आयत 59। तो कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके बरगुज़िदा बंदों पर सलाम है। कि अल्लाह ताला बेहतर है या जिन्हें ये लोग सब शरीक ठहराते हैं। इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।